Good morning, students. Good morning, students. Today I am going to continue your poetry, Amanda, page number 83 from your textbook, First Flight. We have seen in the last video how Amanda is being instructed by her mother. Amanda, who has the habit of bending her shoulders, sitting lazily, and biting her nails. These are the things which she does usually, and what her mother wants her. To sit in the right posture at this time or point of time when she is being scolded by her mother. She imagines herself to be in a deep fanciful worlds, we can say. What she has been saying here, we can see in the brackets in the poem what it has been written. You can say the second stanza approximately here. There is an languid emerald sea where the whole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now, what is languid means something in the state of relaxed. She is relaxed. Emerald here, that means a green color. Inhabitant, resident. Drifting, carried slowly by the water. Blissfully means happily. Now, what Amanda is at that situation of the time when she was being pointed out for the bad habits, what she always used to do, but her world was in the fanciful world she was living. What she was just thinking about herself, that where she is there now, where she was there at that time when she was being instructed by her mother about the bad habits, what she usually does. Now, she was being scolded by her mother for her bad habits. At this time, point of time, what she is imagining herself to be in a deep green sea. She says that she wants to be the only resident of this beautiful green sea. She imagines herself like a mermaid who is alone there and leads her life in a very relaxing way. She always says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. What she feels, that she wants to be peacefully alone in a relaxed environment. She wants to live herself because she's actually always been surrounded by the family, and she's always been instructed at the age of adolescence by her parents about the habits what she usually has. Now in this paragraph यहाँ पे हमने देखा कि अब अमेंडा जो है उनकी मदर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, या उनकी मदर जो उनकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रही है यहाँ पर इस समय कि नेल्स बाइट कर रहे हैं, उसे मत करो, तुम सीधे बैठो, बेंड होके ना बैठो, पोस्चर स्ट्रेट करो अपना। ये सब चीज़ें जब उनकी मदर उनको स्कोल करती है, तब अमेंडा का पूरा ध्यान कहाँ है? वो अपनी ही फैंसीफुल वर्ल्ड में है। वो क्या इमेजिन कर रही है? अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही है उस ग्रीन सी में, अकेले सोल इन, मतलब अपने अकेले उस सी में वो मरमेड की तरह फ्रीली पानी के बहाव में अकेले हैप्पीली बहती हुई आगे बढ़ रही है। तो रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट कि पानी के बहाव से वो आगे खिंचती जाए। शी वॉन्ट्स टू बी कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ वाटर एंड फील द एनवायरनमेंट, द रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट दैट। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ हुए हैं। यहाँ पे एनाफोरा यूज़ हुआ है, रिपीटेडली यूज ऑफ अ वर्ड, स्टार्ट ऑफ 2 or more लाइन्स, डोंट बाइट, डोंट हॉन्च, assonance, use of a vowel sound, oh, don't haunch your shoulders, rhyme A, B, B, C, 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 Amanda, Amanda, straight, Amanda, see me blissfully. This is Amanda, Amanda. That means it is A. Straight, that means B. Here, we can say straight means B, and Amanda, see me blissfully. See me blissfully. That means A. What is the rhyming scene? We can actually see here is A, B, C, C, C. A, B, C, C, C. In this 6 or 7 lines, the rhyming scene is A,
Now we can see once again rhyming scenes A A, B A, C C C. The word ended Amanda, Amanda. They both rhyme. That means A A. Straight is a simple, no other word rhymes with it. It is B. Then again Amanda and C. Amanda is again the rhyming scene of the first two lines. So it is again A. Then last three lines here, C, me, blissfully are C, C, C. So it is a rhyming scene A, A, B, A, C, C, C. Now we have seen all, there is also assonance here. Mermaid is a well-known imaginary creature. So this is an illusion, sorry, not assonance. This is an illusion created by the poet to give a general image which is just an imaginary creature, mermaid. Now the next stanza. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan. Now in this line, what the poet says here the poet says that Amanda's mother is inquiring her about whether she has done her homework or not. यहाँ पे क्या कर रहे हैं पोएट एक जनरल हमें बता रहे हैं यहाँ पर स्टैंजा के लाइंस में कि उनकी जो मदर है वो पूछ रही है पूछ के देखना चाहती है कि क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं, और क्या उसने वो काम किया है जो उन्होंने उसे असाइन किया था पहले, कौन से काम. शी हैज़ डन हर होमवर्क और नॉट, एंड देन शी आस्क हर वेदर शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम और नॉट. क्या उसने अपने कमरे को साफ़ किया है या नहीं, और क्या उसने अपना होमवर्क किया है या नहीं. ये सब बातें उनकी मदर उसे इंक्वायर कर रही है, पूछताछ कर रही है कि उसने ये काम सब किए हैं या नहीं. शी हैज़ बीन क्लीन्ड हर रूम और नॉट. मोर ओवर शी इज़ ऑल्सो रिमाइंडेड टू क्लीन हर शूज़. उसे अपने जूते भी साफ़ करने के लिए कहा गया था. सो हियर we can see that the mother is constantly asking her questions regarding her homework being done or not, whether she has cleaned up her room and shoes or not. But on the other hand, अब क्या हो रहा है, उनके मदर ने तो इंक्वायरीज करी सारी कि उन्होंने होमवर्क किया है या नहीं, उनके रूम्स को उन्होंने क्लीन किया है या नहीं, या उनके जूते उसने साफ़ करके रखे हैं या नहीं अमेंडा ने. मगर यहाँ पर अमेंडा किस इमेजिनेशन में है. अब यहाँ पर अमेंडा क्या कर रही है, अमेंडा शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन. देखें, आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. अब यहाँ पे वो क्या कह रही है, यहाँ पे भी वो इस चीज़ को कंसिडर कर रही है ना, कि अब वो अपनी ही फिर वापस अपनी इमेजिनेशन में उनकी मदर जो इंक्वायरी कर रही है वो तो कर रही है उनके हिसाब से, मगर वो फिर अपने इमेजिनेशंस में है यहाँ पर इस लाइंस में. और यहाँ पे और कुछ वर्ड्स भी हैं इस लाइन से. ऑर्फन यानी अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. हश्ड मीन्स क्वाइट एंड स्टिल प्लेस. अब यहाँ पे वो क्या कर रही है, उनकी मदर जो इंक्वायरी कर रही थी, अब वो अब कौन से इमेजिनेशंस में है यहाँ पर. शी वुड क्या इमेजिन कर रही है, अब वो शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स. दिस मीन्स दैट शी इमेजिन्स हर हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन हु इज़ रोमिंग इन द स्ट्रीट. वो अपने आप को अनाथ में समझ रही है और इधर उधर भटक रही है गलियों में. दिस मीन्स दैट शी इमेजिन्स इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स शी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट. यानी अब वो ऑर्फन बोलने का मतलब क्या हुआ इस लाइन्स में, वो अब इमेजिन कर रही है, वो क्या कहना चाह रही है कि अगर वो अनाथ होती तो शायद वो फ्रीली गलियों में घूम सकती थी जैसे वो चाहती. शी हैव ड्रॉन डिज़ाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट विथ हर अनकवर्ड फीट विथ क्वाइटली. अब वो और क्या कह रही है, अगर वो अनाथ होती वो फ्रीली मूव करती गलियों में, और वहाँ जो मिट्टी रहती सड़कों पे उस पर अपने नंगे पैरों से कुछ भी सॉफ्टली कुछ भी डिज़ाइंस उस पर बना देती. सो वी कैन सी दैट द थिंग्स ऑपोजिट टू हर मदर, सीज दैट शी थिंग्स ऑपोजिट टू हर मदर. जितने भी हमने पहले स्टैंजा में पहले देखा कि उनकी मदर उन्हें बैड हैबिट्स को ना करने से रोक रही हैं, उन्हें कह रही हैं कि अच्छी तरीके से बैठो, सभ्यता सिखा रही हैं, मगर फिर भी वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है, मरमेड में फ्रीली मूव करना एनवायरनमेंट में. सेकंड स्टैंजा में वापस उनकी मदर उन्हें इंक्वायर कर रही है कि उन्होंने जो काम असाइन किए थे वो उसने किए या नहीं, मगर यहाँ फिर वो इमेजिन कर रही है कि अगर वो अनाथ होती तो शायद उसे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, वो फ्री होती जो वो करना चाहती थी. वो गलियों में घूमना चाहती हैं, वो उन मिट्टियों में बिना जूते चप्पलों के नंगे पैरों से घूमकर अपने मन चाहे आकृतियाँ उस पर बनाने की कोशिश करना चाहती हैं. बट अमेंडा
what her mother wants her to keep everything neat and clean, but Amanda wants to play in dust with her bare feet. Moreover, she is also so fed up of this constant instructions from her mother that she says silence is gold, which means that silence is very crucial and precious. She further says the freedom is sweet. This means she never feels free when she is with her mother. अब वो क्या समझ रही है? अब इसमें वो अपने आप को समझ रही है कि वो फ्री नहीं है, वो बंदिश में है, इसलिए वो चाहती है कि वो अनाथ होती तो शायद अच्छा रहता, उसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो चाहे जो करती। उसकी मम्मी के बिल्कुल ऑपोजिटली वो यहाँ पर सोच रही हैं। उसे अब साइलेंस कैसी लग रही है? बिल्कुल गोल्डन, मतलब बहुत ही सुनहरा अवसर होता, शांति प्रिय वातावरण होता है ना, वो सब क्रूशियस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो उसके पास नहीं, इतनी प्रेशियस है, उसे नहीं मिल पा रही है। क्यों? वो हमेशा अपने मदर के, पेरेंट के इंस्ट्रक्शंस के साथ जी रही है। उसे ऐसे लग रहा है कि वो सब इंस्ट्रक्शंस उन्हें बार बार दिए जा रहे हैं जो वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहती। वो कैसे रहना चाहती है? शी लव्स टू बी फ्री। उसे फ्रीडम बहुत अच्छी लग रही है, स्वीट लग रही है। और वो क्या कह रही है? वो ऐसा वो फ्री उसके साथ नहीं रह सकती, ऐसा वो महसूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज़ विथ हर मदर, क्योंकि मदर उनको बार बार इंस्ट्रक्शंस, इंक्वायरीज करती जा रही हैं, उनके बार बार कुछ ना कुछ बोलती जा रही हैं। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस क्या है स्टैंजा में? यहाँ पर एनाफोरा है। एनाफोरा रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड at straight of 2 or more lines. Did you finish? Did you tidy? ये एनाफोरा। राइमिंग सीन्स अगेन हियर इज AADA, EEE, AADA, फिर यहाँ पर EEE दिया है, स्ट्रीट, फीट, स्वीट, ये EE के राइमिंग वर्ड्स हैं। और फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन AAA है, और सेकंड, थर्ड लाइन, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ लाइन AAA है, थर्ड लाइन जो है वो B है यहाँ पर। तो ये राइमिंग सीन्स है इसके। फिर एजोनेंस, यूज ऑफ वोवल साउंड, ओ, दो, टोल्ड यू, योर शूज, यहाँ पे ओ साउंड है। रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, अमेंडा है यहाँ पर। मेटाफोर, साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्ड कलर, फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम इज सेड टू बी स्वीट इन टेस्ट। ये कंपैरिजन है, ये मेटाफोर है यहाँ पर वर्ड यूज़ किए हुए हैं इन स्टैंजा में। हम आगे नेक्स्ट स्टैंजा नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे पोइट्री। थैंक यू।